मेरा बैकग्राउंड भी आ रहा है। I welcome you all. Good morning, teachers. Good morning, principal sir. Sir, I would like to welcome you and please address the parents, teachers, and students who are watching us live. Please, sir. Very good morning to all the सर साउंड बहुत parents, कम आ रहा है सर, guardians. साउंड उतना नहीं सुनाई दे रहा है। Yes. Is it Hey, okay, it's okay, Subhaji? sir. Sound is proper now. ओके, तो सभी को सुप्रभातम। इस मॉर्निंग असेंबली में पेरेंट्स, गार्जियंस, my dear children, this is a YouTube live, a special session from the school regarding health and well-being. My dear parents, since last 1 year, from March 2020 to till date, almost 1 year and 1 month has passed when our children are staying at home, and due to lockdown or due to precautions, the guidelines given by the government, at least our children are made to stay inside the house. This has caused less or very less physical activity. इस पूरे साल में बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्थिति के ऊपर विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने इस देश में और इस देश के बाहर बहुत सारे सर्वे किए कि इसका क्या असर हो रहा है फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बच्चों के। कुछ तथ्य हम आपके सामने रखना चाहते हैं। Several surveys were conducted in India and outside on children to study the impact of COVID-19 lockdown on child health. The survey says that a total of 65.2% of the students have reported one or the other physical problems. 23.40 have gained weight, obesity. 26.90 have suffered headache or irritability. And large number of children develop problem caused due to bad postures. बच्चे लंबे समय तक ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या स्टडी मटेरियल देख रहे हैं, वो सही पोस्चर में बैठ नहीं रहे हैं, जिसके चलते भी बहुत सारी समस्याएं आई हैं। In fact, 70% children during the lockdown days have behavioral problem also. उनके बिहेवियर में भी कुछ बदलाव देखा जा रहा है। 23.90% children have skipped their daily routine. उनका डेली रूटीन क्या हुआ करता था? सुबह जल्दी उठते थे, मुंह हाथ धो करके एक्सरसाइज करना या स्कूल की तैयारी का, स्कूल में आना, पढ़ाई करना, कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी होता था, वो सारे करते थे। अपने दोस्तों से, अपने
ऑनेस्टी ही बात करते थे, उससे उनके मन में जो भाव होता था वो भी प्रकट होता था। वो सारे डेली रूटीन में बदलाव आ गया। 20.90% बिकेम केयरलेस, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। केयरलेसनेस भी डेवलप हुआ है। 36.80% बिकेम स्टबर्न, माता पिता कुछ बोल रहे हैं, बच्चा सुनना नहीं चाहता है या सुन करके भी अनसुना करता है। 17.40 रिपोर्टेड अ रिड्यूस्ड अटेंशन, ध्यान कम लगना, ध्यान देने की क्षमता में भी कुछ कमी आई। About 50% of these children have difficulty in sleeping. उनके स्लीपिंग हैबिट पे भी बहुत असर हुआ है। रात को देर रात तक जगना, सुबह देर तक सोना, इस तरह के बदलाव आए हैं। और बेड पे जाने पर भी लगभग 20 से 60 मिनट तक उनको सचमुच में साउंड स्लीप में जाने में लगता है। 17% of the children wake up in the middle of their sleep at night and take 20 to 30 minutes to get back to sleep. They also suffer daytime sleepiness. दिन में भी सो जाते हैं। daytime tiredness, थकावट भी दिन में आती है। हेडेक, इरिटेबिलिटी, वेट गेन, बॉडी पेन, बैक पेन एंड चेंज टॉयलेट हैबिट्स। पहले होता था कि सुबह जल्दी उठे, जल्दी से मुंह हाथ धो के बाथरूम वगैरह जाके फ्रेश हुए, तो एक नॉर्मल हैबिट बना था। अभी वो भी, उस पर भी असर आया है। The study overall conclude that this COVID-19 and the lockdown had a significant negative impact on physical, mental and emotional health of children, leading to poor quality sleep, unhealthy daily routine, some psychological disorder or parent-child discord. UNESCO also emphasized about the health issue of children. Our HRD ministry in its report also revealed that children felt uncertain, fearful, and isolated during current times. It was also shown that children experienced disturbed sleep, nightmare, poor appetite, agitation, inattention, loss of attention, and separation-related anxiety. They want loneliness. This is also one kind of change that has been seen. ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसका समाधान भी है। सीबीएसई ने अपने गाइडलाइंस में स्कूलों को भी निर्देश किया है कि बच्चों को शिक्षक इस एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करें। घर में पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, मुझे पता है बहुत सारे पेरेंट्स अवेयर हैं अपने बच्चों के लिए और उनको हमेशा मोटिवेट करते हैं डेली फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, तो उनके रूटीन में है। और इसका फायदा ये होता है कि ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट उनके घरों में बंद रहने से हो रहा है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो हम पेरेंट्स और गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हर दिन सुबह में आधा घंटा कम से कम बच्चे कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। इसके लिए हमारे शिक्षक जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं मिस्टर सपन बनर्जी हैं और उनके साथ सहयोगी के रूप में और भी बहुत सारे शिक्षक हैं,
जो बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करेंगे। विद्यालय भी इस दिशा में कुछ प्लानिंग कर रहा है बच्चों के लिए। वो हम लोग वीक में एक दिन कम से कम हमारे शिक्षक अपने वर्ग के बच्चों को इसके लिए कुछ ट्रेनिंग और कुछ एक्टिविटी करवाएंगे। लेकिन असली बात ये है कि बच्चे इसको अपने हैबिट में लाएं। हर दिन वो एक्सरसाइज करें, कोई फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। अगर 2 घंटा ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं तो उसके बाद कुछ फिजिकल एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी जरूर हो, उसके बाद ही फिर दूसरा पढ़ाई शुरू हो। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अब घर में ही अपने अभिभावक की देख रेख में बच्चे करते रहें और स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। आज इस अवसर पे हमारे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं वो बच्चों को, अभिभावकों को इस फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या एक्टिविटी हो सकता है, बहुत कम समय में वो कुछ बातें आप लोग के सामने रखेंगे। और एक विधिवत हम लोग क्लास अगले बुधवार से सुबह 7:30 से 8 बच्चों के लिए ये रखा जाएगा। तो वो उनके जो कंसर्न क्लास टीचर हैं वो उनको एड्रेस करेंगे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे। तो बच्चे भी अब तैयार हो जाएं, क्योंकि उनको बहुत लंबा रास्ता तय करना है अपनी जिंदगी में। और जिसका शरीर अच्छा होता है उसका मन भी अच्छा होता है। तो ये चीज बच्चों को भी रियलाइज करना है कि अपने स्वास्थ्य को हमको ठीक रखना है। और उसका बस सिंपल एक ही उपाय है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज घर में करते रहें। उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा होगा और फिर पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो फिर सभी को एक वेद के आशीष वचन से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी आनंदित रहें, किसी को दुख न हो, ऐसी प्रार्थना के साथ हम आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अब हम चाहेंगे कि सफल बनर्जी साहब आपको एड्रेस करें। सफल बनर्जी। धन्यवाद सर। Thank you very much. थैंक यू सर। Now, Thank you, sir. as you know that we are assembled here to create the awareness among the children of our school as well as the parents and motivate them that why the exercise nowadays is essential. Before that, I want to say that yoga is a light which one's lit will never dim. The better your practice, the brighter the flame. The health of human beings is deteriorating day by day, and lifestyle diseases are spiking due to factors such as sedentary lifestyle, bad diet, and increasing presence of bacteria, parasites, and viruses in the environment. Globally, the challenge is to develop new and stronger antibiotics and drugs to control and kill these new viruses and bacteria. In such circumstances, asanas play a very important role in preventing the onset of many adverse health conditions. Asana is a very simple and economical preventive measures that can help in treating most of the widespread non-communicable lifestyle diseases and improving the health of people. Every day, if we spare only 15 to 20 minutes for different kind of the exercises related with the breathing exercises, we have already chalked out a program. That is, first of all, we have to perform a set of warm-up exercise, then some asanas related with yogic exercises, then we have to perform the breathing exercises, then we have to perform some stretching exercises, and then the person, those will not be able to perform जो
मतलब थोड़ा सा एजेड पर्सन है, 40 के ऊपर में है, जिसका वेट काफी ज्यादा है, जिसका कोई बॉडी में कोई तकलीफ है, उनके लिए एक सेट ऑफ चेयर एक्सरसाइज रखे हैं जो आप घर में बैठ करके उसको कर सकते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज से, क्योंकि इससे हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन फ्लो काफी अच्छा हो जाएगा। स्टार्ट प्लीज नरेश। वार्म अप एक्सरसाइज हमेशा पहले हल्का ऐसे दौड़ते हुए टो का ऊपर में खड़ा होकर के मूवमेंट करना है। उसके बाद फिर हम स्टॉप हो जाएंगे, फिर हम पैर से नीचे से ऊपर, क्या ऊपर से नीचे तक एक्सरसाइज करेंगे, जस्ट बॉडी को एक मोबिलाइज एक्शंस में इसको लाने के लिए। तो ये बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए कि अगर हमारा वार्म अप एक्सरसाइज प्रॉपर हो जाए तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा से हो जाएगा, और उसके बाद हम जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें वो फ्रूटफुल रहेगा हमारा बॉडी के लिए। क्योंकि अभी जो वेदर कंडीशंस है, जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, इससे बाहर आने के लिए यही एकमात्र उपाय है जिसके चलते हम हमारा इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। सो ये जो एक्सरसाइज है, ये कमर को जो आप देख रहा है रोटेट किया जा रहा है, इससे कमर के अंदर में पेल्विक रीजन में एक मोबिलाइजेशन चालू होगा, और इसके बाद हमारा अपर पार्ट में नेक्स्ट जो है आर्म्स को जो रोटेट कर रहा है, इससे मेरा शोल्डर जॉइंट्स को मूवमेंट मिलेगा। इसके बाद हम चल जाएंगे नेक मूवमेंट में। वो नेक मूवमेंट जो है एक बार रोटेट करेंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे करके लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन में टर्न करेंगे। ये जो है, ये जो फ्रॉम लोअर पार्ट टो से लेके हेड तक की जो खाली ये 2 मिनट का टाइम लगता है, हर इंसान को इसको एक बार कम से कम जरूर कर लेना चाहिए। इससे पूरा बॉडी का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो काफी अच्छा हो जाता है। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ द आसन्स दैट इज रिलेटेड विद द फर्स्ट ओबेसिटी। सर अभी बताइए, बहुत सारा बच्चा हमारा देश में ओबेसिटी से ग्रसित होते हैं, और इसका पीछे कारण है जो हमारा जो बैड लाइफस्टाइल है और खान पान का जो समस्या होते हैं। हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते हुए कोई भी फूड मटेरियल्स को खाते चले जाते हैं, और फैट को हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं बॉडी में। एकदम पहला आसन, हाउ कैन वी ओवरकम द ओबेसिटी। खाली बोलने से नहीं होता है, कैसे करेंगे? तो वज्रासन। वज्रासन इज अ सिंपल सिटिंग पोज। ये जो अभी देख रहा है आप लोग, इसको कहते हैं वज्रासन। वज्रासन में पूरा बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, पूरा आपका स्पाइन और पेल्विक रीजन एकदम स्ट्रेट होगा, आई एकदम सामने तरफ होना चाहिए, दोनों हाथ घुटना के ऊपर रहेगा, और नॉर्मल सांस हम लेते रहेंगे। ये नॉर्मल सांस इस पोजीशंस में और इस पोस्चर्स में 15 to 20 मिनट्स हम लोग अगर प्रयास करता है इसको परफॉर्म करने के लिए, इसको बेनिफिट्स क्या होगा? एकदम फर्स्ट बेनिफिट्स होता है दैट इट नॉर्मली हेल्प्स इन डाइजेशन। हमारा डाइजेशन प्रॉपर होगा। अगर डाइजेशन प्रॉपर होगा तो हमारा बॉडी के अंदर में इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, क्योंकि उसमें एनर्जी फ्लो काफी ज्यादा होगा। इसके बाद ये हमको हार्निया और पाइल से प्रिवेंट्स करते हैं, एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड गिव स्ट्रेंथ टू द पेल्विक एंड स्पाइन एंड लेग्स। ये जो पोस्चर्स है, इट इज वेरी मच माने एसेंशियल पोस्चर्स फॉर ईच एंड एवरीवन। आफ्टर फूड वी कैन परफॉर्म इट। नाउ वी विल प्रोसीड, दैट इज इफ वी विल परफॉर्म this exercise for 15 to 20 minutes every day, ultimately it will create the tremendous pressures in your pancreas regions, and ultimately it will help to that is secretions of your insulin, and which ultimately maintain the blood sugar level inside our body. So ये बहुत अच्छा फ्रूटफुल आसन है। नेक्स्ट आसन है हमारा त्रिकोण आसन। ये जो त्रिकोण आसन है, ये भी हमारा ओबेसिटी से बचाने के लिए हमको बहुत मदद करते हैं। और ये त्रिकोण आसन जो है, इट नॉट ओनली helps to improve our that is we can overcome obesity, it also helps to increase the capacity of the lungs. इसमें जो है एक बार बाएं तरफ टर्न करके बॉडी को स्ट्रेट करके देखेंगे, पूरा गर्दन सीधा होना चाहिए हाथ के तरफ। राइट साइड में बायां हाथ हमारा लेफ्ट पैर के ऊपर में है, और इस पोस्चर्स में हम 20 to 30 सेकेंड्स रहेंगे, और नॉर्मल ब्रीदिंग सिस्टम्स को हम चालू रखेंगे। ये जो आसन है, यह है त्रिकोण आसन। इस त्रिकोण आसन के सहारे हम स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक पेन, साइटिका, डिफरेंट काइंड ऑफ द डिसऑर्डर से हम मुक्ति हमको मिल सकता है इफ वी परफॉर्म इट एवरी डे 10 to 15 मिनट्स। नेक्स्ट आसन समझाएंगे, दैट इज योर डायबिटीज के लिए। डायबिटीज में जो है
तो पहला आसन है भुजंगासन। दिस भुजंगासन जो है ये हमारा काफी स्ट्रॉन्ग आसन है। एंड ये आसन आप देख सकते हैं पोस्चर्स में, जैसे सामने जो है पेट का ऊपर में पूरा प्रेशर आ रहा है और पूरा बॉडी में थाई से लेकर के, आप थोड़ा साइड हो जाओ नरेश, यस, थाई जो है, थाई मसल्स, पेल्विक रीजन, टो, पूरा और नॉर्मल ब्रीदिंग सिस्टम चालू रखेंगे। इसमें हम हमारा ब्रीथ को 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे और इससे मेरा फायदा होगा, हमको डायबिटीज से तो मुक्ति मिलेगा ही, इसके साथ ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस मतलब सांस लेने में जिसको तकलीफ होता है सडन टाइम में, बैक पेन, फैटिक और स्ट्रेस से भी ये हमको रिलीफ दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग रुक करेंगे नेक्स्ट आसन की तरफ, दैट इज योर पवन मुक्तासन। दिस पवन मुक्तासन आर आल्सो वेरी मच हेल्पफुल टू help us to overcome the diabetes. This pavan mukta asanas, ये pavan mukta asanas जो है nowadays it is advisable to each and every group, not only the age group from 7 to onwards, कोई भी इसको कर सकते हैं। बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, कंधा में अगर उसका दर्द भी है और उसके साथ साथ उसका अगर मसल्स में पेन हो रहा है, हिप मसल्स में पेन हो रहा है, जॉइंट में पेन हो रहा है, ये सबसे हम मुक्ति ये इस आसन का थ्रू से हमको मिल सकता है। So we have to hold these postures for 20 to 30 seconds. Every day we have to perform 10 to 15 times, and ultimately it gives the result that we will relieve from the diabetes as well as different kind of the problems related with BP and extra fat in pelvic regions. Next आसन हम लोग परफॉर्म करेंगे, which normally अस्थमा जो पेशेंट्स है, जिसको हम एस्मा कहते हैं, वो एस्मा पेशेंट के लिए, एस्मा इज वन काइंड ऑफ द क्रोनिक रेस्पिरेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, एस्मा में एक्चुअली जो एस्मेटिक पेशेंट्स है उसमें जो है नॉस्ट्रिल्स पार्ट में सेल्स जो है वहाँ स्वेलिंग हो जाते हैं, जिसके चलते उनको सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होते हैं। तो इससे निजात पाने के लिए हम लोग तो डिफरेंट एक्सरसाइज करते ही है, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा सपोर्टिव आसन होता है गोमुख आसन। प्लीज try to see the perfect postures of the Gomukh asanas. We have to turn your face please, yes. एक गोमुख आसन जो है इसमें दोनों पैर को क्रॉस वाइज हम इसको बेंड करके रखेंगे, बॉडी को पूरा सीधा करेंगे, चेस्ट को ऊपर प्रेशर सामने तरफ देखो, स्ट्रेट, मेक योर बॉडी स्ट्रेट, एंड नाउ वी हैव टू होल्ड फॉर 30 सेकंड एंड वी टेक द ब्रेथ डीपली एंड स्लोली। द ब्रीदिंग प्रोसेस विल बी normal in these asanas. It normally helps to open the lungs by stretching the chest ribs. Chest ribs को अगर आप देखते हैं तो आपको, अगर आप परफॉर्म कर रहा है तो आपको परफॉर्म करते करते आपको पता चल जाएगा जिसमें काफी ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है चेस्ट रिब्स में, और अल्टीमेटली ये जो है ये चेस्ट रिब्स में जहां स्ट्रेस आता है तो उसमें अल्टीमेटली हमारा लंग्स का ऊपर में जो प्रेशर है वो धीरे धीरे हटते चला जाता है और हमारा एक रिड्यूस कर देते हैं, ऊपर में जो नॉस्ट्रिल्स में जो स्वेलिंग होता है उसको रिड्यूस करते हैं। सेकेंड आसन अस्थमा से बचने के लिए हमारा नेक्स्ट आसन है पर्वतासन। दिस आसन्स आर वेरी मच हेल्पफुल। इसमें क्या होता है, हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल करेंगे, इनहेल करने के बाद ब्रीथ को होल्ड करके रखेंगे 30 सेकंड्स, और उसके बाद नॉर्मल जो ब्रीदिंग हमारा चालू होगा, इस नॉर्मली हेल्प्स टू इंक्रीज द लंग्स कैपेसिटी and it reduce the back pain also. Please make your body straight. इसमें आप देखिए दोनों थाई का, दोनों जो नी पार्ट्स है, दोनों एक दूसरे के तरफ स्ट्रेट पोजीशंस में, दोनों हाथ हमारा सिर का ऊपर में है और बॉडी मेरा पूरा स्ट्रेट है। इससे हम नॉर्मल ब्रीदिंग सिस्टम को चालू रखेंगे और इस पोजीशंस में हम 30 सेकंड्स को होल्ड करके रखेंगे। इससे क्या हो रहा है, हमारा सर्कुलेशन सिस्टम में भी डेवलप होगा और एयर पैसेज जो है वो अपस्टीयर ब्लॉकेज जो है हमारा नॉस्ट्रिल्स में, उसको ये मतलब हटाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आसन दैट इज योर मत्स्यासन। दिस इज नोन एज द फिश पोज, मत्स्यासन। मत्स्यासन, दिस मत्स्यासन it normally helps to decrease the swelling especially in our nostril region. Now look the postures and try to perform it, because it ultimately not only helps to remove
the swelling portions in the nostrils, but it also helps to remove the extra fats, especially in the thigh region, in the pelvic region, in the belly region, and the below of our cup muscles. So ये ultimately ये exercise से हम asthma जो भी patients है जिसको सांस लेने में तकलीफ है, ये अगर हर दिन इसको 10 से 15 मिनट्स तक परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरेशंस प्लीज रिमेंबर that you have to hold your breath only for 30 seconds. Next हम जाएंगे hypertension. Hypertension means that is the person who are suffering from the blood pressures. तो इसके लिए एकदम पहले हम जो आसन करेंगे वो है ताड़ासन. Different आसन्स आर ऑल्सो दिया, ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्त आसन, सब इसमें हाइपरटेंशन में मदद करते हैं, लेकिन ताड़ासन में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. This ताड़ासन we first inhale slowly and then raise your arms up and hold the postures for few seconds. ये postures देखिए, टो को ऊपर में खड़ा होकर के पूरा बॉडी को स्ट्रेच करके सीधा आपको रखना है. And now please exhale and then back slowly. Again perform. Please inhale and please raise your arms up. Inhale करके बॉडी को, हाथ को अप करना है और exhale करके बॉडी को धीरे धीरे पोजिशंस में ले आना है. It normally reduces the anxiety and hypertensions, and it also cures the flat foot and back pain, and it also improves the body postures. प्रिंसिपल साहब ने जो जो चीज बताए, आज बच्चा इसलिए सफर कर रहा है because they are not performing all these asanas properly. Next is back pain. If suppose a particular person is suffering from back pain, what asanas will be suitable? The first asana is Bakrasan. Bakrasan, look the postures of Bakrasan. Here, the entire body should be turned towards the leftward directions. Left hand should be, right hand should be stretched. And again, we have to change the positions and we have to hold the breath for 30 seconds. We have to stay there for 30 seconds. How can we count it 30 seconds? Please you count the number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे करके. If you count the 15 numbers, it means it exactly related with the 30 seconds. Now we have to come back to the original positions. It ultimately helps to improve our flexibility of the neck, leg and spine, and also the neck pain can be removed through this. Another is the Salbhasan. This Salbhasan is also very much supportive to remove us from the back pain. Look the postures. Here, the entire body are normally bended and we normally get the supports with our belly part. Belly part में हमारा support के चलते, and you might have seen that is the thigh muscles. Look the positions of the thigh muscles. Look the positions of the hand muscles and calf muscles. और कितना प्रेशर बॉडी का टोटल आ रहा है बेली का ऊपर में, ये जब आप परफॉर्म कीजिएगा तो पता चलेगा. It normally helps to remove us from the back pain. If you will have any back pain, then you can also perform these, as well as I have already told you that Vajrasana also very much helpful to remove the back pain, and this kind of the asanas are help us to overcome. Now we will proceed to the breathing exercises. The first one is the Anulom and Vilom. Nowadays सब कोई जानते हैं अनुलोम और विलोम को बारे में. पहले हम ब्रीथ को होल्ड करते हैं, इससे फायदा क्या होता है? एक्चुअली हमारा सवेरे उठने के बाद अगर आप अपना हाथ को नोज का, नॉस्ट्रिल्स का सामने रखते हैं, तो यू माइट हैव सीन कि हमारा दोनों नॉस्ट्रिल से इक्वल एयर जो है वो पास नहीं होता है. किसी एक नॉस्ट्रिल से ज्यादा एयर फ्लो होता है, किसी नॉस्ट्रिल से कम एयर फ्लो होता है. ये एक्चुअली एयर जो रेगुलेट करते हैं बॉडी में, इसको बैलेंस बनाने के लिए हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं. एंड इट अल्टीमेटली लेफ्ट साइड जो है ये हमारा राइट साइड को कंट्रोल करते हैं, माने लेफ्ट ब्रेन जो है राइट साइड का पार्ट को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन जो है लेफ्ट साइड का पार्ट को कंट्रोल करते हैं. और इसलिए एयर जो फ्लो होता है बॉडी के अंदर में, इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं थ्रू द अनुलोम एंड विलोम. इसके स्टार्ट करो. इसमें जो है लुक द पोजीशंस. फर्स्ट हम इनहेल करते हैं, वन नॉस्ट्रिल्स में इनहेल करके उसको होल्ड किए. इसके बाद हम दूसरा नॉस्ट्रिल से उसी एयर को प्रेशर से छोड़ते हैं, फिर उसको इनहेल करते हैं, फिर अपोजिट जो नॉस्ट्रिल्स है उससे वो एयर को हम छोड़ देते हैं, फिर इसको
सांस को खींचते हैं और इसके बाद ये अगर इसको बोलते हैं अनुलोम एंड विलोम। इसको सब कोई आज के जमाने में आपका लंग्स कैपेबिलिटीज बढ़ाना है, अगर आपको कोरोना से लड़ना है तो दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी मच फ्रूटफुल। नेक्स्ट विल प्रोसीड टू फॉर कपालभाति। ये हमको हर दिन कम से कम 5 मिनट तक परफॉर्म करना जरूरी होता है। नाउ हियर द कपालभाति मीन्स टू ब्रीथ। जो ब्रीथ हम ले रहा है उस ब्रीथ को हम ब्रेक करके छोड़ रहा है। इससे हमारा इंटरनल मस्कुलर्स जो ऑर्गन्स है it normally get the very supportive and the immune systems can be developed through it. So it normally helps us to increase the lungs capabilities of an individuals and to support to our stomach as well as kidney as well as heart properly. So look the process how the breathing systems are controls through it. This process is known as Kapalbhati. Third जो हम proceed करेंगे उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट आवर 2 फिंगर्स जो है दोनों कानों का उंगली का कान के अंदर में डालेंगे। उसके बाद बॉडी को पूरा स्ट्रेट करेंगे और फिर हम जैसे भुमरा का जो आवाज होता है उससे हम उसको मुंह से आवाज करेंगे। स्टार्ट करो। इससे जो वाइब्रेशंस पैदा होगा बॉडी के अंदर में, ये अल्टीमेटली हमारा बॉडी में जो सर्कुलेशन सिस्टम्स है उसको डेवलप करेगा, इम्यून सिस्टम को भी डेवलप करेगा और इससे हमारा मेंटल कंसंट्रेशन को भी डेवलप मिलता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जैसे हम वार्म अप किए थे योगा करने से पहले, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कुछ कर लेने से क्या होता है बॉडी के अंदर में मोबिलिटी बना रहता है। क्योंकि बॉडी अभी हमारा काफी ज्यादा बॉडी के अंदर में टेम्परेचर बढ़ गया है, उस टेम्परेचर को हम ऑटोमेटिकली रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इसका जैसे हम वार्मिंग अप करते हैं उसमें इसको कहते हैं लिम्बरिंग डाउन। 2 टर्मिनोलॉजी है, पहला था वार्मिंग अप और अभी जो करेंगे इसको बोलते हैं लिम्बरिंग डाउन। मतलब बॉडी के अंदर में जितना भी टेम्परेचर हम अंदर में उसको इंक्रीज किए थे स्लोली उस इंक्रीज किया हुआ टेम्परेचर्स को हम डिक्रीज करना चालू करेंगे नॉर्मल प्रोसेस में। एंड दैट्स व्हाई दिस मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस आर वेरी मच एसेंशियल एंड सपोर्टिव। दिस इज नोन एज योर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड दिस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नॉर्मली परफॉर्म आफ्टर द कंप्लीशंस ऑफ द सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। ये जितना एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करने के बाद ही हम ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, द फ्लेक्सिबिलिटी of the body parts are normally increased and the spines are normally very much supportive and the ligaments and tendons nowadays it is very much essential to bring the or create the mobility especially in the ligaments and tendons and ये जो है इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के द्वारा हमारा लिगामेंट्स और टेंडन्स के अंदर में काफी ज्यादा मोबिलिटी आ जाते हैं और जिसके चलते जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं एक जगह से सडन उठ करके जाते हैं जिसको हम एजिलिटी कहते हैं, उस एजिलिटी में हमको बैलेंस बनाने के लिए ये बहुत सपोर्ट करते हैं। सो अभी जो है ये सेट ऑफ एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक सेट ऑफ एक्सरसाइज हम लोग परफॉर्म करेंगे जो है चेयर एक्सरसाइज, जिसमें जो हमारा एजेड पर्सन है क्या जो हमारा जिसका वेट काफी ज्यादा है उन व्यक्ति के लिए ये एक्सरसाइज को एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट जो है रिकली एंड जॉन्स उन्होंने इसको डेवलप किए थे और ये सेट ऑफ एक्सरसाइज आपका सामने हम अभी परफॉर्म करके दिखाएंगे। अगर मान लीजिए ये जो जितना भी एक्सरसाइजेस बताया गया है ये एक्सरसाइज अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो ये जो है ये एक्सरसाइज आपके लिए बेटर होगा। पहले आप सीधा इस टाइप का कुर्सी ले लीजिए और कुर्सी लेने के बाद सीधा बॉडी को स्ट्रेट करके बैठिए। जितना स्ट्रेट बॉडी को आप स्ट्रेच करके बैठ सकते हैं, दोनों हाथ आपका घुटना का ऊपर होना चाहिए और उसके बाद ऐसे प्रेशर दीजिए जैसे कमर में आपका काफी ज्यादा प्रेशर आए। मेक योर बॉडी स्ट्रेट। एक चीज ध्यान में रखिएगा, पैर का ये जो पार्ट है और ये जो थाई है इसमें 90 डिग्री एंगल्स एग्जैक्टली होना चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज में फायदा मिलता है। अगर कोई एजेड पर्सन है हमारे घर में जिनका एज मोर देन 60 इयर्स है तो उनके लिए एक कुर्सी जो है वॉल के तरफ सपोर्ट करके रखिएगा
क्योंकि हो सकता है जब हम कुछ एक्सरसाइज ऐसे करें तो उनको प्रेशर से एक चेयर इधर उधर हो सकता है, इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हम लोग इसको देखेंगे। तो पहला एक्सरसाइज है, आर्म को पहले स्ट्रेच करेंगे स्ट्रेट। देखिए, अगर मान लीजिए आपका वेट काफी ज्यादा है, आपके पास टाइम नहीं है, आपका एज काफी ज्यादा है, मोबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो ये एक्सरसाइज आप चेयर में बैठ के कर सकते हैं। पहले हाथ को स्ट्रेच किए, फिर दोनों हाथ को ऊपर में ऐसे किए और इसके बाद इसको थोड़ा देर होल्ड किए, उसके बाद फिर हाथ को नीचे लाए और उसके बाद पीछे तरफ हाथ को ले गए, जितना दूर तक आप ले जा पा रहा है। उसके बाद इसको यहाँ पर दोनों हाथ से आपका कंधा के ऊपर लाए और इसको रोटेट किए, बैठे बैठे ही रोटेट किए। इससे देखिए ये मोबिलिटी आपका शोल्डर जॉइंट्स में हो रहा है। इसके बाद दोनों हाथ को सामने किए और हल्का से बॉडी को सामने तरफ बेंड करने का प्रयास किए। जितना दूर तक आपका बॉडी जा पा रहा है आप उतना दूर तक ले जाइए। ये कोई जरूरी नहीं है कि एकदम पूरा जमीन को टच करना है, जितना दूर तक। इसके बाद फिर बॉडी को धीरे धीरे पीछे तरफ ले जाइए। यहाँ पर थोड़ा देर होल्ड कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग लीजिए और उसके बाद फिर दोनों हाथ से इसको पकड़ लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा शरीर को आगे करके दाहिना पैर जो है इसको थोड़ा सीधा कीजिए और तो अपने तरफ खींच के रखिए। इसमें थोड़ा होल्ड कीजिए, प्लीज ट्राई टू होल्ड। इसमें जो है ये कफ मसल्स, थाई मसल्स और हिप मसल्स में काफी प्रेशर आएगा, स्ट्रेच होगा प्रॉपर्ली। और इसके बाद फिर पैर को धीरे धीरे नीचे कीजिए, फिर लेफ्ट पैर को ऐसे उठाइए, तो को अपने तरफ खींचिए और उसके बाद फिर इसको ऐसे ही रखिए, होल्ड कीजिए 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे इसको नीचे ले आइए, फिर दोनों टो को पीछे तरफ ले जाइए, जितना दूर तक ले जा पा रहा है। इससे यहाँ पर देखिए थाई मसल्स के ऊपर में काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है और टो मसल्स जो भी मेरा है उसमें भी काफी मेरा प्रेशर आ रहा है। और उसके बाद फिर इस पैर को आगे करके सामने कर लीजिए, जैसे मैंने पोजीशंस लिए। इसके बाद इसको आगे कीजिए, दोनों हाथ को सामने करके जितना दूर तक बॉडी को ले जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए तो अपने तरफ होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद सीधा दोनों हाथ को ऐसे रखिए स्ट्रेट और इसको दोनों स्ट्रेट रखने के बाद उसी से उठ जाइए और फिर यहाँ पर बैठिए, फिर उठिए और फिर बैठिए। ये जो एक्सरसाइज है ये 10 मिनट्स तक आपको ये उठना और बैठना करना पड़ेगा, जिसके चलते आपका बॉडी का बैलेंस भी बना रहेगा और मस्कुलर स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद आप बैठ जाइए और दोनों हाथ से इस पार्ट को पकड़ लीजिए कुर्सी का, जितना दूर तक बॉडी को ले जा पा रहा है ले जाइए। फिर ऑपोजिट डायरेक्शंस में बॉडी को ले जाइए, बॉडी को टर्न कराइए और जितना दूर तक ले जा पा रहा है। ये एक्सरसाइज पूरा बॉडी को आपका वार्म अप एक्सरसाइज। इसके बाद लास्ट हम प्रोसीड करेंगे 5 मिनट का, हाउ टू डेवलप द लंग्स कैपेबिलिटीज। नाउअडेज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड, तो लंग्स कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए इतना तो एक्सरसाइज है ही, इसके साथ साथ हम कैसे करके हमारा लंग्स का कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते। तो एक डॉक्टर जी समंता जो यशोदा मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, उनका सीनियर फिजिशियंस है एज वेल एज वहां पर फिजियोथेरापिस्ट भी है, उन्होंने इसको डेवलप किए थे इस एक्सरसाइज को। इसमें प्री कोरोना, पोस्ट कोरोना और ड्यूरिंग कोरोना में हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कोरोना में डॉक्टर का सलाह लेके करना, लेकिन प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना के लिए लंग्स का सबसे अच्छा एक्सरसाइज। पहले दोनों हाथ हथेली को सीधा कर लीजिए। आपका यहाँ पर जो हड्डी है गर्दन का, यहाँ पर दोनों हाथ रखिए। यहाँ आपको लंग्स का जो है अपर पार्ट को आप महसूस कर सकते। पहले आप क्या कीजिएगा, सांस को पहले आपको खींचना है नॉस्ट्रिल से, देखिए ठीक से देख लीजिए, ब्रीथ को होल्ड करके फिर धीरे धीरे ये आपको 10 टाइम्स करना है। इसके बाद दोनों हाथ को यहाँ पर रखिए। यहाँ पर आपका अपने फील होगा जब जैसे हम सांस को खींचेंगे, सेम प्रोसेस वी हैव टू अडॉप्ट इट। पहले हम सांस को खींचेंगे, यहाँ रखने से क्या होगा, दिस आर द चेस्ट कैविटी, यहाँ चेस्ट कैविटी है, इसका नीचे मेरा लंग्स है और चेस्ट कैविटी का यहाँ पर मैंने हाथ रखे दोनों स्ट्रेट करके, और फिर हम सांस को धीरे धीरे खींचेंगे।
फिर इसको छोड़ेंगे मुंह से, नॉस्ट्रिल से लेना है और मुंह से छोड़ना है। इसको खींचने के बाद थोड़ा देर के लिए ब्रीथ को होल्ड करना है और उसके बाद छोड़ना है मुंह से। इसके बाद दोनों हाथ को यहाँ रखिए जहां पर मेरा डायाफ्राम है। ये जो पोजीशंस है ये डायाफ्राम का पोजीशंस है। इसमें एक हाथ के ऊपर में दूसरा हाथ को यहाँ रखेंगे, आप फील कर सकते हैं इस चीज को। और उसके बाद दोनों हथेली को ऊपर में रखने के बाद द सेम प्रोसेस और नॉर्मली वी ट्राई टू परफॉर्म। सांस को खींचना है नॉस्ट्रिल से, इसको ब्रेथ को होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। आपको खुद महसूस होगा यहाँ आपका ये जो कैविटी है या जो डायफ्राम है, डायफ्राम का मूवमेंट आगे पीछे हो रहा है, आप ये हाथ से फील कर सकते हैं। ये जो 3 सेट एक्सरसाइज है, ये अगर रेगुलर आप 10 टाइम्स करके करते हैं तो आपका लंग्स का जो कैपेबिलिटीज है, इंटरकोस्टल्स मसल्स यहाँ पर जो है वो काफी सपोर्टिव हो जाता है और जिसके चलते हमको सांस लेने में बहुत ज्यादा हमारा सहूलियत हो जाते हैं। सो आज इतना तक ही। नेक्स्ट जो क्लास होगा उस क्लास में आप लोग को फिर हम लोग दूसरा नया चीज बताएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशंस आप सभी को पसंद आया और सबके लिए एक ही संदेश है, प्लीज ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड थिंक हेल्दी। एक कहावत है कि कोई चीज होने से पहले डर जो है, हमारा डर अंदर में आ जाता है तो इम्यून सिस्टम पूरा खत्म हो जाता है। कितना भी एक्सरसाइज मैंने कर लिया, कितना भी हम सपोर्टिव फूड खा लिए, लेकिन मन के अंदर में जो डर है, उस डर अगर मेरा मन के अंदर बैठ जाते हैं तो ये सपोर्टिव सिस्टम जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं ये कोई फायदा देने वाला नहीं है। तो प्लीज थिंक इन द पॉजिटिव डायरेक्शंस, टुवर्ड्स द डायरेक्शंस। एक छोटा सा कहानी बोल के हम खत्म करना चाहते हैं। एक व्यक्ति को फांसी का सजा होने वाला था, तो उसको जज ने जब फांसी का सजा देने वाले थे तो एक साइंटिस्ट उनको बोला, भाई जब ये मरी जाएगा तो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। बोला ठीक है आप कर सकते हो। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ठीक है आप इस एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो बोले जो फांसी होने वाला है उस व्यक्ति को फांसी नहीं दिया जाए, उसको हम लोग स्नेक जो है सांप से उसको मारेंगे। तो स्नेक को उसका सामने रख दिया गया और उसका मुंह ढाक दिया गया, वो कोबरा था। और उसके बाद उसको कुछ नहीं किया गया। एक व्यक्ति को खाली बोले जो 2 पिन लेकर के, आलपिन लेके यहाँ पर उसको आलपिन लेके प्रिक करो। आलपिन से प्रिक किया और देखा गया जो वो व्यक्ति मर गया। जब उसका बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला जो ड्यूरिंग द फेलियर ऑफ हार्ट। तो अगर डर मेरा शरीर में है, डर मेरा मन में है, डर मेरा आसपास में है, उसको भगाने का सबसे अच्छा उपाय है या पॉजिटिव सोचिए। जहां नेगेटिविटी का बात होता है वहां से दूर रहिए, आप हेल्दी और सेफ रहिए। यही प्रार्थना के साथ आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you very much, Super. sir. Very informative. हाँ मिसेस रबानी। Yes, sir. It was very informative. And the chair exercises, I mean, I would like to have some of the photos if you can send so that I can practice it at home, because I really cannot do all the other ones. The stretchings can be done because bending is difficult for me because of the knee problem. So I shall be obliged if you can send me those photographs. Okay. Subhash is ready with all these things. All right, sir. I'll be obliged. Now because the children and their parents are also watching, so this is a sincere appeal from the entire school family. Yes. Because the children, those who are sitting at their home, they are also our responsibility. So this is a sincere appeal to all the parents and guardians to consistently motivate their children to do a regular physical exercise every day, to
help them. Some of our teacher will regularly meeting your child through Google Meet, and they will also help you in this endeavor. But the most important thing is the consistency, the regularity. Every day, every child has to do some physical exercise to remain physically, mentally, and psychologically fit. And all of you, our children are winners. They are capable to do all the great things in their life. Only thing is that stay fit and remain happy also. So thanks to Sapanji and all the my colleague members, teachers, those who have attended this workshop, and many thanks to all the parents and guardian who has spared valuable time watching this YouTube live. And once again, wishing all of you a very happy and healthy life. Thank you. And Thank you, sir. Thank you so Thank much. you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. There are a set of teachers, perhaps the timetable has already been prepared or it will be shared soon by Karanji Yes, for sir. this 7:30 to 8 o'clock. Almost every day, one class will get a chance where the teacher will perform some activity with the children. So it is the Yes, sir. children, it is the I program had for it. the children. Yes. I had a talk with Sapanji. That is ready. Okay. The day after tomorrow, we shall be having a meeting of the teachers concerned. Then Definitely. it will be